the bad and the ugly of your life. Definitely. And expressed it through your writing, through the Potter stories. For sure. Depression clinical depression is a terrible place to be. Terrible place to be. So you became depressed after your mother died? Yes, but I think it was a kind of delayed. I think I had tendencies towards depression from quite young. It became really acute when I was sort of 25 to 28. Was a dark time. It's that absence of feeling, and it's even the absence of hope that you can feel better. And it's so difficult to describe to someone who's never been there. J.K. Rowling हमेशा से एक सक्सेसफुल ऑथर नहीं थी। हैरी पॉटर लिखने से पहले her life had completely fallen apart. She went through a painful divorce. As a single mother, उन्होंने एक न्यू बॉर्न बेबी को संभाला। वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट पे जी रही थी because she had no job. She battled severe depression and felt like a failure. उनके अराउंड जो लोग थे उनके राइटर बनने के सपने पर हंसा करते थे। वो हर रात रोते हुए सोने जाती थी और सुबह उठते ही माइंड में हमेशा बस एक ही सवाल हुआ करता था, Will my life ever get better again? J.K. Rowling सिर्फ हार्ट ब्रोकन नहीं थी, she was mentally exhausted, financially broken and emotionally lost. वो लाइफ के ऐसे पॉइंट पे थी जहाँ she believed she had nothing left. ऐसी सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते? Sometimes the battle is not fought in the real world. It's all in the brain. जब इमोशंस गला फाड़ के चिल्ला रहे होते, लॉजिक मानो किसी कोने में पड़ा है और ये कहने की ट्राई कर रहा है कि चिल्लाओ मत जब सुनने वाला कोई है ही नहीं। यूजुअली इट इज सेड कि बुरे वक्त में रो के अपना दिल हल्का कर लो, लाइक क्राई इट आउट। बुलशिट। डिप्रेस्ड फील करना तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट एक्शंस? व्हाट टू डू? फाइटिंग इमोशंस एक स्किल है जिसे किसने एक बार सीख लिया, ही कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। How can someone conquer the world? That's illogical, you may say. Well, the world around us actually exists in the form of perspective we have of it in our mind. Control your mind and control your world. Be calm. Negative emotions are still emotions that are meant to be felt. जितनी तेजी से दूर भागने की कोशिश करोगे, सांस उतनी ही फूलनी है। थॉट्स जरूर आते हैं कि I'll do this, I'll do that, मे बी मेरे ये करने से मुझे बेटर फील होगा, पर बेटर फील करना ही क्यों है? There is a problem which requires a solution. Just feeling better and feeling good is not going to help. Prioritize solving over feeling. कई बार ऐसा होता है कि हम डिनायल में जीते। टू एक्सेप्ट थिंग्स फॉर व्हाट दे आर फील्स इम्पॉसिबल, बट ये सबसे पहला स्टेप है सॉल्विंग के प्रोसेस का, विच इज एक्सेप्टेंस। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बस कहने की बात नहीं है, इट इज एक्चुअली वेरी ट्रू। टुडेज फ्रेंड माइट बी टुमारोज एनिमी, टुडेज ड्रीम माइट बी टुमारोज नाइटमेयर। अ बैड थिंग इज गारंटीड टू हैपन, और जब भी कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए, वी शुड हैव द करेज टू एक्सेप्ट द रॉ ट्रूथ एज इट इज। थ्री इडियट्स में रैंचो ऑलिसवेल यहाँ करता था, लेकिन हमको यहाँ करना है। भले ही लॉजिकली ये एज अ सोल्यूशन तो काम नहीं करता है, पर आगे बढ़ने की एनर्जी जरूर दे देता है। जहां अपने आप को ये दिलासा देना है कि हाँ, दिस सिचुएशन इज स्टिल इन माय कंट्रोल, अब भी चीजें ठीक हो सकती है, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। जहां लॉजिकली यू नो योर सिचुएशन इज फक्ड, पर स्टिल पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से कभी कभी सोल्यूशंस मिल भी जाते हैं। We first had dinner, you said something very interesting. I asked you, how do you decide which decision to take? Because you have a lot of hard decisions to take. So we only live one timeline. You're always going to regret the other timeline that you didn't live.
Oh yeah, everyone's gonna hate. You're gonna hate whatever you do, no matter what. You're gonna hate if you do it, hate if you don't do it. Some very famous, very smart philosopher said that, and it stuck with me. And I was like, yeah, I mean, you regret what you do, you regret what you don't do. Because if you don't do it, you wish you did it. If you do it, you wish you don't. So how do you decide? And what I said was, I always take the brave choice. You always take the brave. That's it. If I sit there and go, do I do this fight? I don't need the money. I don't need the fame. If I don't do it, I'm going to see him fight. And why didn't I fight him? If I do it, I have to train all day and dedicate my life to this when I should be having fun on Halloween. So either way, I'm going to regret it. What's the brave choice? Fight him. So I'll fight him. एंड्रू टेट, hate him or love him, पर जो भी बोला है एकदम सही बोला है। हाथ पे हाथ रखे बस सिंपली बैठ तो नहीं सकते। So why not choose the toughest decision that exists? Experience is experience. चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और we should make the smartest decision कि ये करने से मेरे सिचुएशन में कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर बैठेगा। There is always something to do. And why not do something crazy? Because we only live once, right? You must prepare your mind and body not to cry. ये बहुत हद तक इनसेंसिटिव साउंड करता है, बट एक बार सोचो, अगर बुरा फील लगने पर रोना एक हैबिट है लेटिंग गो के नाम पे, सो जस्ट इमेजिन यू आर इन पब्लिक और ऐसी कोई सिचुएशन बन गई जहां पे यू फील लाइक क्राइंग। क्या आप पब्लिक में रोना चाहोगे? कोई भी कितना भी कह ले कि नहीं हम तो जज नहीं करते, वी डोंट जज, बट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस और लोग कहीं ना कहीं जज करेंगे ही। तो कभी रोना मत, और एटलीस्ट ट्राई नॉट टू क्राई। एक बुरा वक्त खत्म होते ही दूसरा शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सोचना कि हाँ दिस फेज हैज पास्ड अवे, अब चैन की सांस लेने मिलेगा, वेल प्रोबेबली नहीं मिलेगा। इट इज अ साइकिल विच विल कीप रिपीटिंग। बेसिकली आदत लगा लो। डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी स्टेबल। डीलिंग विथ इश्यूज एंड सॉल्विंग इश्यूज को लाइफस्टाइल ही बना लेना इज द वे। पेन को एक कंफर्ट जोन में बदलते हुए देखना इज एन अचीवमेंट। एक बैटल के खत्म होते ही दूसरा बैटल कभी भी लड़ना पड़ सकता है। सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। कंसिडर एवरीथिंग एज योर नॉर्मल रूटीन, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज तक हमें यही कहा गया है कि जब भी बुरा फील हो रहा हो तो जाके किसी के सामने ओपन अप हो जाओ, किसी को अपना प्रॉब्लम शेयर करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। बट आई से डोंट। द वे यू हील बाय स्पेंडिंग टाइम अलोन विथ योरसेल्फ इज लॉट मोर इफेक्टिव देन बस किसी के साथ जाके बात करना या फिर किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करना। अकेले हील होना मेंटली ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू जाके किसी से बात करना। इट फील्स लाइक अ ह्यूज अचीवमेंट। मुश्किल है, आसान नहीं है, या फिर मे बी सबके बस की बात नहीं है, बट वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्व्स। व्हाई टू फाइंड अ पिलर व्हेन यू कैन बी अ पिलर फॉर अदर्स? ऐसे बहुत मूवी सीन्स आपने देखे होंगे जहां पे एवरीथिंग इज फक्ड, सब हार रहे, सब मर रहे, एवरीथिंग इज गोइंग डाउनहिल। बट ऐसे टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर एक जोक मार देता है। दिस वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, इसे रियलिटी में भी किया जा सकता है। मैं खुद करता हूँ पर्सनली। बेसिकली अपने सफरिंग को एक मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और ये सोचना कि अरे ये क्या था। दिस हेल्प्स अ लॉट मेंटली, क्योंकि आप पेन को एक फन की नजर से देखते हो। हाँ, ये बहुत मेजर या सीरियस सिचुएशंस में फिट नहीं होता है। प्लीज टेक योर सिचुएशन सीरियसली व्हेनेवर नेसेसरी। ये सबके लिए नहीं है। गो फॉर इट इफ यू प्रिफर इट। लेट्स टेक अ टेस्ट। मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर 3 से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर यस आ रहा है, दैट मीन्स राइट नाउ योर इमोशंस आर कंट्रोलिंग योर थॉट्स। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप कोई पेनफुल मेमोरी बार बार अपने माइंड में रिप्ले कर रहे हो even though you can't change it? Question number 2, कोई गाना, कोई जगह या कोई सेंटेंस जैसे माइनर ट्रिगर्स क्या आपका पूरा मूड स्पॉइल कर देते हैं? Question number 3, are you holding on to a situation even though वो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर रहा है? Question number 4, क्या आप पूरा दिन खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश करते हो just because silence feels scary? Question number 5, क्या आप इस होप में रहते हो कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए? अगर 3 से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर आपका यस आया है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, पर आपके डिसीजंस आपके इमोशंस ले रहे, लॉजिक नहीं, which has to change. We survived worse. ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, राइट? एक वक्त था where we all were broken. ऐसा एक फेज था जहां पे हम सब ने सोचा कि ये तो नहीं हो पाएगा, दिस इज टू मच टू गेट ओवर विथ। एक टाइम था जब चीजें हम फॉर व्हाट इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बट हियर वी आर टुडे, वी सर्वाइव्ड इट, वी आउटग्रू इट। हम काफी हद तक उन चीजों के बारे में सोचते तक नहीं है। हम हील बस इसलिए नहीं हुए क्योंकि टाइम हैज पास्ड अवे, हम हील इसलिए हुए बिकॉज वी ग्रू अप। I had a short and really quite catastrophic marriage, and I'm left with this baby, and I've got to get this baby back to Britain, and I've got to rebuild us a life. And adrenaline kept me going through that, and it was only when I came to rest that it hit me what a complete mess I had made of my life. And that hit me quite hard. Even in the middle of the pain, जेके राउलिंग ने एक डिसीजन लिया था विच चेंज्ड एवरीथिंग। उन्होंने पास्ट को सुधारना छोड़ के फ्यूचर को बिल्ड करने पे फोकस किया। उन्होंने खुद से ये कहा कि आई कांट कंट्रोल हु हर्ट मी, बट आई कैन कंट्रोल व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट। शी डिडंट वेट टू फील बेटर टू स्टार्ट। उन्होंने एक रूटीन बनाया, दिन में टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, और सिर्फ तब लिखना व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग। वो भले ही कितनी भी टायर्ड हो, कितनी भी इमोशनल हो, वो रोज लिखा करती थी, भले ही 10 ही मिनट क्यों ना सही, बट शी यूज्ड टू वर्क। वो सारे इमोशंस विच डिस्ट्रॉयड हर, उन्होंने उन सारे इमोशंस को पोर किया इनटू राइटिंग अ स्टोरी, जिसे आज हम हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं।